Hi, online team, offline team. Good morning. How are you? Fine. Okay. So let's start today's workshop. First of all, welcome everyone to the Generative AI workshop. Before starting the workshop, I will give my short introduction. Myself, Shriram Kuri. I am an AI engineer plus professional data science trainer. And in this workshop, we will learn about the generative AI and real-time AI projects using the Python. Also, we will also explore how AI changing the future of technology and how you can build your own AI application step by step. Okay, so please confirm online team. Am I audible? Okay, now let's come to our today's workshop agenda. The first point is what is generative AI. Second is the history of generative AI. What can we do using the generative AI? मीन्स जनरेटिव एआई के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट वन है हु क्रिएटेड जनरेटिव एआई. Many students confusing in this part, like who created the generative AI, they don't know, right? The next topic is generative AI tools and its framework, which framework we are using to perform the gen AI concept and build the multiple applications. Okay, then how generative AI works, generative AI काम कैसे करता है, ये भी important point है. देन टाइप्स ऑफ जनरेटिव एआई, कौन से टाइप्स होते हैं जनरेटिव एआई के अंदर. देन प्री रिक्वेसाइट्स फॉर द लर्निंग जनरेटिव एआई. जनरेटिव एआई सीखने के लिए हमें पहले क्या आना चाहिए, देन हम जनरेटिव एआई सीख सकते हैं. ओके, देन डिसएडवांटेजेस ऑफ जनरेटिव एआई. At the last of the workshop, we will cover one project, that is the smart chatbot using the Hugging Face model. That is the today's workshop agenda. I hope this topic is clear to everyone. Please confirm. Please. Yes, yes, yes. In the chatbot session, online team. Perfect. Let's go ahead with the first topic, that is the generative AI. Now, what is generative AI? Okay, what is generative AI? Generative AI is a branch of AI that can generate the new content like text, images, code, video, and many more. That is a simple definition of generative AI. Generative AI generate the multiple images, text, code, video, and many more. This is a generative AI concept. Now we will understand in the simple language. Okay, what is generative AI? We can say like generative AI. Generative AI is a is an AI artist. Generative AI is a AI artist. Let's suppose we will get taking one example. Suppose like as a painter. Okay, just as a just as a painter. Okay, just as a painter. Generative AI is a one type of example. We are taking one example. Okay, just like as a painter. पेंटर क्या करता है, राइट? कंबाइंस द कलर. क्या करता है, कलर कंबाइन करता है. देन उसके स्ट्रोक से मल्टीपल इमेजेस क्या करता है, तो प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है न्यू पेंटिंग, राइट? हम लिख सकते हैं इसके अंदर कंबाइनिंग कंबाइनिंग द कलर्स कंबाइन द कलर्स stroke to produce combine the color and stroke to produce the new painting, right? That is clear. क्या करता है, कंबाइन द कलर एंड स्ट्रोक टू प्रोड्यूस द न्यू पेंटिंग. यही काम होता है पेंटर का, सेम एज इट इज अ जनरेटिव एआई. जनरेटिव एआई भी क्या करता है, मल्टीपल चीजों का कलेक्शन करता है, देन इसके बेसिस पे क्या करता है, यहाँ पर काम परफॉर्म करता है, जनरेट करता है मल्टीपल, लाइक टेक्स्ट हो गया, कोड हो गया, वीडियो हो गया, मेनी मोर, राइट? बट देन गो टू नेक्स्ट टॉपिक in today's workshop. Okay, now generative AI is one of the most powerful technology shaping the future of innovation and automation.
हम देख रहे हैं अभी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, सब इंडस्ट्री के अंदर जनरेटिव एआई क्या कर रहा है, तो ऑटोमाइज कर रहा है चीज़ों को, है ना। तो दिस इज द मेन पॉइंट। देन इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री ऑफ जनरेटिव एआई। हिस्ट्री क्या है जनरेटिव एआई की, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। तो इन 1950s, इन 1950s से स्टार्ट हुआ है जर्नी, द स्टार्ट ऑफ द एआई। इन एआई कब से आया है, तो 1950s में एआई का स्टार्ट हुआ है। अभी व्हाट इज मीन बाय एआई, राइट। फर्स्ट व्हाट इज मीन बाय आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है, जो ह्यूमन क्रिएट नहीं करता है, दैट इज आर्टिफिशियल, राइट, सिंपल। और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मीन्स जो प्रीवियस मिस्टेक से लर्न करके न्यू मिस्टेक, जो प्रीवियस मिस्टेक है उसको अवॉइड करता है, दैट इज अ इंटेलिजेंस, दैट इज अ एआई, सिंपल। ओके। देन इन 1980s, डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ओके। नाउ व्हाट इज मीन बाय न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क मीन्स क्या होता है, आवाज आ रहा है ऑनलाइन, प्लीज कंफर्म। श्रेयस, आप वॉइस प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपके साइड से एक बार चेक कर लो। ओके, ओके, लेट्स कंटिन्यू। इन 1980s में क्या हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ओके। नाउ डेवलपमेंट हुआ है न्यूरल नेटवर्क का। नाउ न्यूरल नेटवर्क मीन्स क्या होता है, सिंपल, जो ह्यूमन, अभी ह्यूमन कॉम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर क्या करता है, तो थिंक करता है। लेट सपोज अभी एक प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम कैसा है, थोड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ह्यूमन क्या करता है, सोचता है। तो किसके बेसिस पे सोचता है, तो न्यूरॉन्स के ऊपर सोचता है। तो दिस न्यूरल नेटवर्क ऑल्सो इंस्पायर बाय द ह्यूमन, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके। तो this development of neural network are covered developed in 1980s. In 2014, in 2014, the GAN model introduced. Okay. Now GAN models introduced. Before GAN models introduced, first we will give the one example. What is the generative AI? Like what before done of generative AI and many more. Okay. So I will open my notebook. Okay. First of all, we are right, like बिफोर जनरेटिव है, पहले जनरेटिव एआई के पहले क्या होता था, बिफोर जनरेटिव एआई। ओके, बिफोर जनरेटिव एआई यहाँ पर क्या होता था। अभी हम एग्जांपल लेंगे, लेट सपोज वन ई कॉमर्स कंपनी इज देयर, वन ई कॉमर्स कंपनी इज देयर। अभी ई कॉमर्स कंपनी है, राइट। अभी इनको क्या करना है, कि क्रिएट करना है 100 शूज ऑफ डिजाइनिंग फॉर द एडवर्टाइजमेंट। जैसे हम लिखेंगे फर्स्ट, क्रिएट, क्रिएट 100 शू डिजाइन, क्या करना है, 100 शू का डिजाइन क्रिएट करना है फॉर, इसके लिए, तो एक एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो कंपनी क्या करती थी पहले, ग्राफिक डिजाइनर हायर करती थी, राइट। नाउ ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर क्या करते थे यहाँ पर, क्रिएट मैन्युअली, राइट। जो भी इमेजेस है, हर एक इमेज क्या करते थे, क्रिएट करते थे मैन्युअली, राइट। क्रिएट मैन्युअली, यहाँ पर क्या करते थे ग्राफिक डिजाइनर, हर एक इमेज क्या करते थे, क्रिएट करते थे मैन्युअली। अभी यहाँ पर क्या लगता था, अभी ईच एंड एवरी इमेज, जो हर एक इमेज है, यहाँ पर हर एक इमेज क्या होता था, क्रिएट करने के मतलब हर एक इमेज डिफरेंट डिफरेंटली क्रिएट होना चाहिए। मीन्स इसके लिए क्या लगता था, मोर टाइम, ऑब्वियस सी बात है, मोर टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो कॉस्ट है, कॉस्ट भी कैसा लगेगा हमारा, हाई कॉस्ट लगेगा, राइट। कॉस्ट कैसा लगेगा, हाई लगेगा। ये कब होता था, बिफोर जनरेटिव एआई। जैसे हमने लिया, एक कंपनी था, ई कॉमर्स कंपनी, इनको क्या करना है, 100 शू का डिजाइन क्रिएट करना है फॉर एडवर्टाइजमेंट। ओके, इन्होंने क्या किया, ग्राफिक डिजाइनर हायर किए। देन जो ग्राफिक डिजाइनर हायर किए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए था, कि क्रिएट मैन्युअली, क्या, जो हर एक इमेज मैन्युअली क्रिएट करना था। तो इसके लिए मोर टाइम, टाइम ज़्यादा लगता था, कॉस्ट भी कैसा लगता था, ज़्यादा लगता था। बट आफ्टर जनरेटिव एआई, दैट इज इम्पोर्टेंट, आफ्टर द जनरेटिव एआई, आफ्टर द जनरेटिव एआई, अभी आफ्टर जनरेटिव एआई क्या हुआ है, ओके। अभी हम यूज क्या करते हैं, यूजिंग सम मॉडल्स, राइट।
using some models, like अब यहाँ पर हम मॉडल्स यूज करते हैं जैसे जैसे कि मिड जर्नी, ओके, मिड जर्नी हो गया, और डेल ई, मिड जर्नी, डेली, स्टेबल डिफ्यूजन, यूजिंग दिस सम मॉडल्स हम क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्ट देते हैं, राइट, प्रॉम्प्ट देते हैं हम किसको, इन पर्टिकुलर मॉडल्स को हम प्रॉम्प्ट देते हैं। अभी जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं, राइट, लेट सपोज अभी हमारे सिनारियो के अंदर जो ई कॉमर्स कंपनी है, राइट, हमें क्या क्रिएट करना है, तो शू का इमेज क्रिएट करना है हर एक इसके लिए, हर एक डिज़ाइन के लिए। तो हम इस पर क्या करेंगे, इन मॉडल का यूज़ करके इनको सिर्फ क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट देंगे, दैट इज लेट सपोज जनरेट 100 मॉडर्न शू इमेज फॉर एडवर्टाइजमेंट। ओके, हमने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट दिया, जनरेट 100 मॉडर्न शू इमेजेस फॉर एडवर्टाइजमेंट। अभी यहाँ पर जो ए आई है, राइट, जो ए आई है, दिस मॉडल्स है, ये क्या करेंगे, ए आई क्रिएट द रैंडमली इमेजेस, हर एक इमेज क्या करेंगे, तो जनरेट करके देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर जो टाइम कॉस्ट है, जैसे बिफोर जनरेटिव है टाइम कैसे लगता था, यहाँ पर ज़्यादा लगता था, आफ्टर जनरेटिव है क्या होगा, टाइम कैसा होगा, फीवर लगेगा, फ्यू टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, फ्यू टाइम लगेगा तो कॉस्ट भी कैसा लगेगा, लो कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट कैसा होगा, कॉस्ट भी लो ही होगा, राइट। तो आफ्टर जनरेटिव है क्या क्या चीज़ें हुए, क्लियर हुआ। नाउ in 2014, in 2014 GAN models introduced, right? Now what is meant by GAN, what is meant by GAN, GAN भी क्या है, important है यहाँ पर, what is meant by GAN। अभी जो GAN इंट्रोड्यूस हुआ है, कब हुआ है, 2014 के अंदर GAN इंट्रोड्यूस हुआ है। Now what is meant by GAN, फर्स्ट GAN मीन्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट देखना है हमें, what is meant by GAN, GAN मीन्स क्या होता है, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, ओके, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। अभी इसमें क्या होता है, ओके, तो इसमें बेसिकली दो चीजें आती है, दैट इज फर्स्ट वन इज अ जनरेटर, एंड सेकंड वन इज अ डिस्क्रिमिनेटर, फर्स्ट व्हाट इज बाय जनरेटर, जनरेटर क्या होता है, जनरेटर क्या करता है, जनरेट करता है रैंडम इमेजेस, क्या करता है जनरेटर, जनरेट द रैंडम इमेजेस, जनरेट द रैंडम इमेजेस। बट जो रैंडम इमेज जनरेट कर रहा है किसके ऊपर कर रहा है, इट इज ट्रेन ऑन द रैंडम डेटा, राइट, इट इज ट्रेन ऑन द रैंडम डेटा, दैट इज अ जनरेटर, क्या करता है, जनरेटर रैंडम इमेजेस एंड इट इज ट्रेन ऑन द रैंडम डेटा। नाउ व्हाट इज मीन बाय डिस्क्रिमिनेटर, क्या करता है, अभी डिस्क्रिमिनेटर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है, ये भी ट्रेन हुआ है लेकिन कौन से डेटा के ऊपर, तो रियल डेटा के ऊपर, राइट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज ट्रेन ऑन रियल डेटा, नाउ अभी ये क्या करेगा, इट विल आइडेंटिफाई that image is real or not, right, real or not, okay, this is a GAN concept। GAN क्या है, GAN मॉडल, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, इसके अंदर बेसिकली टू चीजें आती है, जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। नाउ जनरेटर जनरेट द रैंडम इमेजेस, जनरेट करता है मल्टी रैंडम इमेजेस, बट ये ट्रेन हुआ है रैंडम डेटा के ऊपर, सेम एज इज सेकंड डिस्क्रिमिनेटर, ये भी ट्रेन हुआ है रियल डेटा के ऊपर। नाउ इट विल आइडेंटिफाई द इमेज, आइडेंटिफाई करता है इमेज दैट इज रियल और नॉट, दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ GAN मॉडल, ओके। इतना क्लियर है, ऑनलाइन टीम, ऑफलाइन टीम, प्लीज कंफर्म द चैट, ऑनलाइन टीम, ओके, यस। in 2017 in 2017
transformer architecture developed. Now what is meant by transformer? Okay, we can say transformer is a backbone of generative AI. Okay, what I am saying, see, generative AI, what is the transformer? Transformer is a backbone of generative AI. सी, यहाँ पर हम अगेन नोटपैड ओपन करेंगे, यहाँ पर क्या है हमारा ट्रांसफॉर्मर, राइट? ट्रांसफॉर्मर क्या बोला आपने फर्स्ट पॉइंट? इट इज अ बैकबोन, इट इज अ बैकबोन ऑफ जनरेटिव एआई। ओके, बैकबोन है। अभी बैकबोन मीन्स क्या होता है? अगेन जो ट्रांसफॉर्मर है, ओके, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर इज अ डीप लर्निंग मॉडल, डीप लर्निंग, transform the deep learning model. Now it is introduced in the paper of, it is introduced in the paper of, कौन से पेपर के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है? तो attention is all you needed, attention you all you needed। इस पेपर के अंदर क्या हुआ है? जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है ये इंट्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर, इस पेपर के अंदर। अटेंशन बन, ओके, पेपर के अंदर क्या हुआ है? तो इंट्रोड्यूस हुआ है। नाउ ट्रांसफॉर्मर इज आल्सो प्रोवाइड, क्या करता है प्रोवाइड? ये प्री ट्रेन मॉडल प्रोवाइड करता है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? इट इज इंट्रोड्यूस और इट विल प्रोड्यूस, इट इज प्रोड्यूस, इट इज प्रोड्यूस द प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, और वी कैन से प्री ट्रेन मॉडल, प्री ट्रेन मॉडल। प्री ट्रेन मॉडल को क्या करता है? ये ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, जैसे जीपीटी मॉडल हुआ है, T5 मॉडल हुआ है, देन बर्ट मॉडल हुआ है। नाउ ये पार्ट सब आएगा किसके अंदर? डीप लर्निंग के अंदर। नाउ व्हाट इज डीप लर्निंग? आई ऑलरेडी टोल्ड, डीप लर्निंग बेसिकली वर्क ऑन द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के ऊपर काम करता है। इसके अंदर ANN, CNN एंड RNN कंसेप्ट आता है, मॉडल्स आते हैं। ANN मीन्स क्या होता है यहाँ पर कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ANN मीन्स क्या होता है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN। देन आता है CNN, देन आता है RNN। अभी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मीन्स all machine learning models we can achieve in the ANN। then what is CNN? CNN basically काम करता है images के ऊपर, and RNN काम करता है text data के ऊपर, textual data के ऊपर। तो it is known as a memory, we can say also RNN is a memory। okay, now there are some features of transformer के क्या है यहाँ पर? कुछ feature है, some features of transformer, सब फीचर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। में ट्रांसफॉर्मर के कुछ कुछ फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे फर्स्ट फीचर आता है दैट इज अ सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, ये क्या होता है? फर्स्ट फीचर आता है। अभी इसको हम पहले देखेंगे। व्हाट इज माय सेल्फ मैकेनिज्म अटेंशन? अब ये काम किसके ऊपर करता है? तो ये फोकस करता है ओनली रिलेवेंट वर्ड्स के ऊपर। क्या करता है? रिलेवेंट वर्ड के ऊपर फोकस करता है, फोकस ऑन द रिलेवेंट वर्ड्स। जो रिलेवेंट वर्ड है उसके ऊपर फोकस करता है ना। व्हाट इज माय रिलेवेंट वर्ड? वी आर टेकिंग वन एग्जांपल। इफ सपोज एग्जांपल लिखेंगे हम यहाँ पर, जैसे हम लिखेंगे माय नेम इज श्रीराम। ओके, अभी माय नेम इज हमने क्या लिखा है? श्रीराम। बट ये काम कैसे करेगा? ये अंडरस्टैंड कैसे करेगा? मॉडल अंडरस्टैंड कैसे करेगा कि माय नेम इज श्रीराम है? तो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट माय पढ़ेगा, देन नेम, इज एंड श्रीराम। अभी ये जो पढ़ने के बाद इसको क्या करेगा? अगेन प्रीवियस जाएगा, दैट इज RNN के ऊपर काम होगा, ऑल काम होगा RNN के ऊपर। तो इसके अंदर क्या है? सेल्फ अटेंशन
mechanism. Basically focus on the relevant word. Relevant word means similar word. Similar word के अंदर क्या होता है, काम करता है ट्रांसफॉर्मर. अब यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट इसका फीचर है. यहाँ पर सेकंड फीचर क्या है कि पैरेलल प्रोसेसिंग. पैरेलल प्रोसेसिंग. नाउ पैरेलल प्रोसेसिंग मीन्स क्या होता है, इट इज अ फास्टर देन आरएनए. फास्टर देन आरएनए. आरएनए से भी क्या है यहाँ पर, ये फास्टर है. आरएनए से फास्टर कौन है यहाँ पर, पैरेलल प्रोसेसिंग. बट पैरेलल प्रोसेसिंग किसके अंदर फीचर आता है, ये तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ही फीचर्स आता है. इतना क्लियर ऑनलाइन टीम, इतना क्लियर. ओके. नाउ थर्ड पॉइंट इज जो थर्ड अपना फीचर है वो क्या है यहाँ पर, प्री ट्रेन मॉडल. प्री ट्रेन मॉडल. प्री ट्रेन मॉडल. नाउ व्हाट इज प्री ट्रेन मॉडल. प्री ट्रेन मॉडल मीन्स क्या होता है, ये ऑलरेडी ट्रेन हुआ है, जस्ट वी हैव टू यूज दैट मॉडल एंड यूज द मॉडल. दैट इज द मीनिंग ऑफ प्री ट्रेन मॉडल. प्री मीन्स क्या होता है, ऑलरेडी. ट्रेन मीन्स ट्रेन ऑन द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, और दिस मॉडल ऑलरेडी ट्रेन. That is the meaning of pre-trained model. This pre-trained model comes under in the transformer. इतना क्लियर हुआ. अभी प्री-ट्रेन मॉडल से हमें एडवांटेज क्या है, राइट. अभी एडवांटेज तो होगा. अभी इसमें एडवांटेज क्या है कि जो हमारा ट्रेनिंग टाइम है ये कम लगता है हमें. नो नीड टू अगेन ट्रेन ऑन द पर्टिकुलर मॉडल एंड लाइक ऑन दैट. ओके. तो इससे क्या होता है, रिड्यूस द टाइम, जो ट्रेनिंग टाइम है वो भी रिड्यूस होगा, एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूव द परफॉर्मेंस अल्सो, राइट. अभी यहाँ पर हमारा स्मॉल आर्किटेक्चर देखेंगे हम. फर्स्ट सिंपल आर्किटेक्चर. सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मर. सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मर. अब इसके अंदर पहला आता है इनकोडर, सेकंड वन इज अ डिकोडर. फर्स्ट वन इज अ इनकोडर एंड सेकंड वन इज अ डिकोडर. तो व्हाट इज मीन बाय इनकोडर. अभी इनकोडर काम किसके ऊपर करता है, तो टेक्स्ट डेटा के ऊपर, जो इनपुट टेक्स्ट आ रहा है उसके ऊपर काम करता है इनकोडर. मीन्स वी कैन से लाइक वर्क ऑन द इनपुट टेक्स्ट. इनपुट टेक्स्ट के ऊपर काम करता है, वर्क और प्रोसेस, राइट. वर्क और प्रोसेस ऑन द इनपुट टेक्स्ट. दिस इज अ इनकोडर पार्ट. नाउ व्हाट इज मीन बाय डिकोडर. अभी डिकोडर क्या कर सकता है यहाँ पर, डिकोडर क्या कर सकता है, जनरेट करता है आउटपुट. जनरेट द आउटपुट. जनरेट द आउटपुट. डिकोडर पार्ट क्या करता है, जनरेट करता है आउटपुट. दैट इज इनकोडर एंड डिकोडर. ना वो जीपीटी जो हम यूज करते हैं, है ना. जीपीटी मीन्स क्या होता है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर. चैट जीपीटी, राइट. मल्टीपल जीपीटी, जिमिनी, दीज आर द जीपीटी. बट जीपीटी ये किसके ऊपर काम करेगा, इनकोडर के ऊपर काम करेगा या डिकोडर के ऊपर काम करेगा. तो जो जीपीटी है, जीपीटी बेसिकली वर्क ऑन द डिकोडर पार्ट. इसके ऊपर काम करता है ये, डिकोडर पार्ट के ऊपर काम करता है जीपीटी. इतना क्लियर हुआ अभी तक सबको, प्लीज कंफर्म. इतना क्लियर हुआ ऑनलाइन टीम. अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर इज अ लाइब्रेरी. ट्रांसफॉर्मर इज अ लाइब्रेरी एंड डेवलप बाय हगिंग फेस. जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर इज अ लाइब्रेरी डेवलप बाय हगिंग फेस. ट्रांसफॉर्मर इज अ लाइब्रेरी डेवलप बाय हगिंग फेस. ओके. डेवलप का स्पेलिंग गलत हुआ यहाँ पर, डी ई. डेवलप बाय द हगिंग फेस. नाउ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, व्हाट इज मीन बाय हगिंग फेस. हगिंग फेस क्या है यहाँ पर, वो देखने का बात है यहाँ पर. हगिंग फेस क्या है यहाँ पर, हगिंग फेस एक प्लेटफॉर्म है
फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के लिए क्या एक प्लेटफॉर्म है और एक कंपनी भी है। ओके, तो जो हगिंग फेस है, लाइक गिटहब फॉर एआई मॉडल। अभी जो गिटहब एआई मॉडल है, राइट, अभी गिटहब क्या होता है, ऑलरेडी इसके अंदर सब स्टोर होता है। हमें क्या करना है, इसके अंदर से सिर्फ डाउनलोड करना होता है गिटहब रिपोजिटरी एंड ऑल ओवर पार्ट। तो यहाँ पर जो पीपल यूज करते हैं हगिंग फेस को, तो क्यों यूज करते हैं, कुछ भी आपने मॉडल एआई के मॉडल जो क्रिएट किए हैं उसको डेवलप करना है, अपलोड करना है किसके ऊपर, हगिंग फेस के ऊपर, तो हगिंग फेस का यूज हो सकता है। देन कुछ प्री ट्रेन मॉडल हमें डाउनलोड करना है फ्रॉम द हगिंग फेस, तो भी डाउनलोड हम कर सकते हैं हगिंग फेस के अंदर से। देन जो एप्लीकेशन हमें क्रिएट करना है, लाइक बिल्ड द एआई एप्लीकेशन, for that also we can use the Hugging Face model. Also share ML projects, जो हमें ML project share करना है तो भी हम Hugging Face का यूज करते हैं। Then most important point, most important question arising here, what can we do in the Hugging Face? What can we do in the Hugging Face? Use ready AI models, example like chatbot, translation, text summarization, and all over. Okay, what can we do in Hugging Face? We ready AI models, हम रेडी कर सकते हैं AI models जैसे चैट जीपीटी हुआ, टेक्स्ट समराइजेशन हुआ, इमेज जनरेशन हुआ। ओके, विदाउट ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच, हमें स्क्रैच से जाने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर। दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ हगिंग फेस। ओके, हगिंग फेस क्लियर हुआ इतना। then again we are going to our main topic. Now in 2020, in 2020 plus, यहाँ पर यूज हुआ है LLMs and modern generative AI tools. Now what is meant by LLM? LLMs means क्या होता है यहाँ पर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जैसे अभी चैट जीपीटी हम यूज करते हैं, दैट इज द वन टाइप ऑफ LLM, राइट। नाउ LLM जो होते हैं ये बेसिकली ट्रेन हुए होते हैं ऑलरेडी सम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गूगल के ऊपर सर्च करेंगे फर्स्ट हम चैट जीपीटी train on how much data, chat gpt train on how much data, or we are saying love how many parameter, कितने डेटा सेट के ऊपर और कितने पैरामीटर के ऊपर ट्रेन हुआ है चैट जीपीटी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट डिफरेंट मॉडल, बट जीपीटी 3.5 फीचर्स 1.175 बिलियन पैरामीटर्स, मीन्स ऑलमोस्ट ट्रिलियन, और सी 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स के ऊपर चैट जीपीटी ट्रेन हुआ है। मीन्स एवरी एलएलएम मॉडल ट्रेन ऑन द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, हर एक एलएलएम मॉडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर क्या हुए, ट्रेन हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि एलएलएम मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इतना क्लियर हुआ ऑनलाइन टीम? 1 मिनट। अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट कैन वी डू यूजिंग द जनरेटिव एआई। अभी हमने देखा कि जनरेटिव एआई से हम क्या कर सकते हैं, तो जनरेटिव एआई के थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं, जनरेट द टेक्स्ट, जनरेट द इमेजेस, क्रिएट द चैटबॉट, और कंटेंट क्रिएशन, मीन्स मल्टीपल काम हम कर सकते हैं यूजिंग द जनरेटिव एआई। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हु क्रिएटेड जनरेटिव एआई। आया हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, who created this generative AI. तो generative AI was not created by single company. Single company ने नहीं किया है. It was developed through a researcher by AI scientist and researcher over many years. एक AI scientist, this is a type of researcher. ये क्या है, रिसर्च बेस्ड जनरेटिव एआई टॉपिक है। ये किसी पर्टिकुलर कंपनी ने या किसी ने पर्टिकुलर आदमी ने नहीं क्रिएट किया है, राइट। बट इन 2014 लैन गुडफिलो इंट्रोड्यूस अ गैन। गैन मीन्स क्या होता है, ऑलरेडी हमने देखा अभी, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क जनरेट करता है रैंडमली इमेजेस, और डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, आइडेंटिफाइड करता है कौन सा रियल है और कौन सा फेक इमेज है। ओके, दैट इंट्रोड्यूस द
GAN which help AI create realistic image and data. रियलिस्टिक इमेजेस के ऊपर काम करने के लिए किसने क्रिएट किया है? लैन वुडफिलो ने गैन क्रिएट किया है, इंट्रोड्यूस किया है ओनली, राइट? बट कंपनीज दैट मेड जनरेटिव एआई पॉपुलर, अभी इन कंपनी की वजह से ही क्या हुआ है, जो जनरेटिव एआई है, एआई मॉडल्स है, ये पॉपुलर हुए। जैसे ओपन एआई ने क्या डेवलप किया है? तो चैट जीपीटी डेवलप बाय द ओपन एआई एंड जीपीटी मॉडल एंड चैट जीपीटी डेवलप बाय ओनली ओपन एआई कंपनी। गूगल कंपनी है, गूगल कंपनी में क्या डेवलप किया है? जेमिनी एंड ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, ये किसने किया है? गूगल ने। व्हाट इज मेटा? मेटा कंपनी ने क्या किया है? डेवलप लामाज मॉडल, जो भी लामाज मॉडल है वो क्रिएट किसने किया है? मेटा ने। देन माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है? इंटीग्रेटेड एआई इनटू मेनी एप्लीकेशन लाइक को पायलट, हमें पता है मल्टीपल, पता है माइक्रोसॉफ्ट के जो हम यूज करते हैं। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो कंपनी ने क्रिएट किया है, हम क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? अभी लेट सपोज अज्यूम करेंगे यहाँ पर चैट जीपीटी ऑलरेडी डेवलप किया है ओपन एआई कंपनी ने, राइट? अभी यहाँ पर चैट जीपीटी ट्रेन हुआ है 1.8 ट्रिलियन और बिलियन पैरामीटर के ऊपर, ओके? तो यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। तो जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसके ऊपर क्या है कि जनरेट करने के लिए हमें, जो मॉडल डेवलप करने के लिए हमें क्या लगा है कि कंप्यूटेशनल पावर भी कैसा लगता है? यहाँ पर ज़्यादा लगता है, राइट? अभी कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा लगता है, मीन सिस्टम भी बड़े होते हैं वहाँ पर, इसलिए जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कंपनियाँ क्या करती है? बड़े डेटा सेट के ऊपर एक मॉडल डेवलप करती है और इस मॉडल को क्या करती है? मार्केट में लॉन्च करती है और उससे पैसा कमाती है। दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके? देन सेम एज इट इज अदर कंपनीज, ओके? योर confusion is clear? Who created generative AI? Generative AI not created by any one person, okay? It is a researcher part. Generative AI tools and framework. Now what is meant by framework? जहाँ पर हम जनरेटिव एआई का जो अभी बात किया, गैन, ट्रांसफॉर्मर, इनका यूज करेंगे, दैट इज अ फ्रेमवर्क। वो प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा, प्लेटफॉर्म नथिंग बट द फ्रेमवर्क। देर आर सम फ्रेमवर्क लाइक लैंगचेन, हगिंग फेस, कोपायलट, सिंगल स्टोर, अलग जिमिनी, हेस्टेक, अलग अलग प्लेटफॉर्म है यहाँ पर एआई टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। जैसे लैंगचेन, लैंग्राफ, लैंग्समिथ, दीज आर आल्सो फ्रेमवर्क्स ऑफ जनरेटिव एआई। इनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो जनरेटिव है एप्लीकेशन है उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। अभी आने वाले कुछ सेशन के अंदर इनके ऊपर भी अलग हम वीडियो बनाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ जनरेटिव एआई वर्क्स। जनरेटिव एआई वर्क्स कैसे करता है, काम कैसे करता है? चार चीजों के अंदर काम करता है मेनली। देर आर फोर वेज। फर्स्ट वन इज ट्रेनिंग विद द लार्ज डेटा। The generative AI, it will work on the large data, it will train on the large data, huge amount of data के ऊपर train होता है। generative AI models are trained on the large amount of data like text data हुआ है, image data हुआ है and video हुआ है, multiple data के ऊपर train होता है, okay? then learning pattern, उन pattern को क्या करता है? learn करता है in the base of deep learning. Next part is using the deep learning model. It uses the advanced model like neural network and transformer. Then AI generate the output based on the prompt, जो भी आप prompt दोगे, and learn pattern जो already सीखा है। The AI generate the new content such as text, images और code, many more। आप जो पूछते हो उसका आंसर हमें मिलता है। इतना क्लियर हुआ ऑनलाइन टीम? इसके अंदर जो LLMs है, LLMs इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। LLMs क्या है? Is a AI model trained on the huge amount of text data to understand and generate the human-like language. That is the simple definition of LLM, large language model. You can write. आपको इंटरव्यू में भी लाइक दिस क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। तो आज का जो वर्कशॉप है इसके अंदर हमारा जो आज का जो वर्कशॉप हमने प्रॉपरली देखा, आपने प्रॉपरली नोट्स क्रिएट किए, तो हमें जो इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चंस पूछते हैं तो इसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? तो हमारा वो टॉपिक भी क्लियर होगा। देन व्हाट इज बाय फ्रेमवर्क ऑलरेडी हमने देखा, फिर भी एक बार हम इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फ्रेमवर्क? अ जनरेटिव एआई फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ टूल्स। क्या है? सेट ऑफ टूल्स एंड लाइब्रेरीज यूज्ड टू बिल्ड द एआई एप्लीकेशंस लाइक चैट जीपीटी हुआ है, कंटेंट जनरेशन हुआ है, लाइक मेनी मोर, एआई असिस्ट हुआ है, लाइक मल्टीपल यहाँ पर
हमारे हो सकते हैं। ओके, याद है? क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अभी हम मूव करेंगे। टाइप्स ऑफ जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई के टाइप्स कौन से होते हैं, मॉडल्स कौन से होते हैं? जैसे अभी टेक्स्ट डेटा के ऊपर हमें काम करना है तो फटाक से याद आता है चैट जीपीटी, राइट? एआई जनरेटर टेक्स्ट आर्टिकल आंसर एंड कोड, एग्जांपल इज चैट जीपीटी एंड जिमिनी। ओनली टेक्स्ट डेटा के साथ काम करता है जीपीटी। इमेज जनरेशन के लिए अलग मॉडल, वीडियो जनरेशन के लिए अलग मॉडल, ऑडियो म्यूजिक जनरेशन के लिए अलग अलग मॉडल्स हम यूज करते हैं। यही पार्ट आता है जनरेटिव एआई के अंदर। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो। देन प्री रिक्वेस्ट फॉर द लर्निंग जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई सीखने के लिए हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, दैट इज द पाइथन। आई ऑलवेज प्रेफर द पाइथन लैंग्वेज बिकॉज पाइथन इज अ इजी लैंग्वेज, लाइक एज ए इंग्लिश लैंग्वेज। जो भी सिंटैक्स आते हैं, जो भी क्यूरीज आती है, जो भी सिंटैक्स स्ट्रक्चर आता है, ये लाइक एज ए इंग्लिश लैंग्वेज जैसे आता है, इसलिए पाइथन लैंग्वेज पावरफुल लैंग्वेज है। ओके, किसके अंदर? ऑल डेवलपमेंट के अंदर, कोर डेवलपमेंट के अंदर पाइथन लैंग्वेज ही यूज होता है। ओके, देन सेकंड वन इज द मशीन लर्निंग बेसिक्स। जो मशीन लर्निंग है, इसके अंदर जो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये चीजें हमें आना चाहिए मशीन लर्निंग के अंदर। जैसे कि इसके अंदर ऑल जो अल्गोरिदम्स है, ये भी कवर होना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हर एक अलग अलग अल्गोरिदम्स डिफाइन किए हैं, already सब डेवलप है, just we have to access that algorithm. Okay, then third point is a deep learning. Now deep learning is the most important, that is ANN, CNN and RNN. बेसिकली काम होता है न्यूरॉन्स के ऊपर। न्यूरॉन्स नथिंग बट व्हाट, समेशन एंड एक्टिवेशन। ओके, देन एनएलपी कंसेप्ट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेचुरल लैंग्वेज जो अभी हम बात कर रहे हैं, वो समझेगा कैसे मॉडल? नहीं समझेगा, इसलिए एनएलपी कंसेप्ट। फर्स्ट वी हैव टू प्रोसेस दैट ऑन टेक्स्ट, on the text. Then mathematical basic like descriptive statistic, inferential statistic, what is mean, median, mode, standard deviation, and all things. Okay. Then API and tools. APIs and tools. What is API? API also important. API means क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अभी हर एक एपीआई को आप समझ सकते हो लाइक एज आई डी। हर एक स्टूडेंट का क्या होता है? यूनिक आईडी होता है। उस आईडी से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली एक्सेस नहीं बोल सकते हम, उसको हम एंट्री दे सकते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर, पर्टिकुलर उस आईडी से। सेम एज इट इज एपीआई। एपीआई भी क्या है? एक आईडी के जैसे काम करता है, यूनिक आइडेंटिफायर जैसे काम करता है एपीआई। अभी आने वाले सेशन के अंदर उसको भी हम कवर करेंगे, हाउ टू गेट एपीआई, एक्सेस कैसे लेना है। अभी रिसेंटली ओपन एआई ने क्या किया है, जो हमें पहले फ्री एक्सेस मिलता था इन वन मेल आईडी, एक मेल आईडी के ऊपर हमने ओपन एआई कंपनी के अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन किया, तो हमें क्या मिलता था यहाँ पर? फ्री एपीआई की मिलती थी, फ्री एपीआई की मिलती थी। देन उसको हम एक्सेस कर सकते 5 और 6 टाइम्स। ओके, तो इन मार्च मंथ के अंदर उन्होंने वो चीज बंद कर दिया है, अभी पेड वर्जन उन्होंने स्टार्ट किया है। ओके, देन इतना क्लियर हुआ। फर्स्ट हमें क्या सीखना चाहिए? देन नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ जनरेटिव एआई। डिसएडवांटेजेस ऑफ जनरेटिव एआई, द मोस्ट डिसएडवांटेज, जॉब इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ what? Automation. Automation with AI may affected some traditional job. Now what is my traditional job means? Traditional job means क्या है? जो repeated है, that is a traditional job, right? Example, telecalling, telecall क्या है? रिपीटेड जॉब है ना। एआई ने क्या किया? इम्प्लेस किया, रिप्लेस किया, राइट? दैट इज ऑटोमाइज कर रहा है कंपनी, ऑटोमेशन आ रहा है बिकॉज ऑफ जनरेटिव है। जहाँ पर बिफोर जनरेटिव है 100 डेवलपर लगते थे फॉर क्रिएटिंग द 100 अलग अलग शूज के इमेजेस क्रिएट करने के लिए, बट आफ्टर जनरेटिव है जस्ट गिव द प्रॉम्प्ट एंड गेट द रिजल्ट दैट सेट, है ना?
fake content, that is also one disadvantage. Fake content, it can create the fake images, videos or news which may spread misinformation. Okay, data privacy issue, incorrect information. These are some disadvantages of generative AI. See, every coin has head and tail, right? Pros and cons. Like the generative AI has same. नाउ नाउ अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक जो हमने स्टार्टिंग में एजेंडा में हमने बोला था कि हम लास्ट में एक स्मार्ट प्रोजेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर हम जो प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं, दैट इज द, उसका नाम है स्मार्ट जनरेटिव एआई चैटबॉट यूजिंग द हगिंग फेस मॉडल। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर प्रोजेक्ट। फर्स्ट हमने वीएस कोड ओपन किया है। इसके अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट इंस्टॉल करना है। फर्स्ट हमें किसके ऊपर करना है, तो स्ट्रीमलीट के ऊपर हमें हमारा प्रोजेक्ट करना है। तो फर्स्ट इंपोर्ट कर लेंगे स्ट्रीमलीट, इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एज एस टी। ओके, फर्स्ट इंपोर्ट कर लिया हमने, यहाँ पर स्ट्रीमलीट इंपोर्ट कर लिया है। देन 1 मिनट, हाँ। नाउ नेक्स्ट अभी हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर हगिंग फेस के मॉडल्स यूज करना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑलरेडी सब डेवलप है, जस्ट हमें क्या करना है, पाइपलाइन को इंपोर्ट करना है। तो इसलिए हम लिखेंगे फर्स्ट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन। आप भी कर सकते हो साथ में, आप करो साथ में। ओके, फर्स्ट क्या किया हमने, इंपोर्ट स्ट्रीमलीट, देन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट पाइपलाइन। ओके, पाइपलाइन क्या किया हमने यहाँ पर, इंपोर्ट किया है। आफ्टर दैट क्या करना है, हमें चैटबॉट क्रिएट करना है, राइट? अभी जो हम चैटबॉट क्रिएट करेंगे, है ना, 1 मिनट, हैंग हुआ है, 1 मिनट गाइस। हाँ, अभी हमें क्या करना है, चैटबॉट क्रिएट करना है। ओके, तो फर्स्ट हम लिखेंगे चैटबॉट, वेरिएबल क्रिएट करेंगे चैटबॉट का। तो चैटबॉट के अंदर जो हमने यहाँ पर पाइपलाइन को यूज किया है, इंपोर्ट किया है, वहां पर लिख लेंगे। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, इसके अंदर हमें क्या लिखना है डायरेक्टली, अभी किसके ऊपर काम करना है, हमें टेक्स्ट जनरेशन के ऊपर काम करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन के ऊपर काम करना है। ओके, अभी टेक्स्ट जनरेशन के लिए मॉडल कौन सा यूज करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मॉडल कौन सा यूज करेंगे, डिस्टिल बर्ड, डिस्टिल जीपीटी, नॉट डिस्टिल बर्ड है, डिस्टिल जीपीटी मॉडल को हमें यूज करना है। डिस्टिल जीपीटी 2 मॉडल हमने यहाँ पर यूज किया है। ओके, देन अभी जो चैटबॉट के अंदर हमने पाइपलाइन क्रिएट किया है फॉर द टेक्स्ट जनरेशन, मॉडल किया है डिस्टिल जीपीटी। ओके, अभी इसमें हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट भी लेना है। अभी हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं डायरेक्टली, तो यूजर इनपुट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, यूजर इनपुट। इसके अंदर क्या करेंगे हम, एस टी, जो हमने स्ट्रीमलेट क्रिएट किया है, एस टी डॉट टेक्स्ट इनपुट, एस टी डॉट टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे आस्क एनीथिंग, जो भी यूजर क्वेश्चन पूछेगा, आस्क एनीथिंग। ओके, यूजर क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर। देन इसको क्या करना है, कंडीशन लगाना है अभी। ओके, अभी यहाँ पर ध्यान दो, कंडीशन क्या लगाना है, 1 मिनट गाइस, राइट। अभी हमें कंडीशन लगाना है कि इफ, अगर यूजर इनपुट, जो भी यूजर इनपुट देगा, इफ यूजर इनपुट, अगर यूजर इनपुट आता है तो हमें क्या देना है, इसके अंदर रिस्पॉन्स देना है ना, कि रिस्पॉन्स तो देना जरूरी है। 1 मिनट गाइस, हैंग हो रहा है।
राइट, अभी आ रहा है रिस्पॉन्स। चैटबॉट, जो हमने अभी चैटबॉट क्रिएट किया है, इसके अंदर क्या लिखा है, और लिखेंगे यूजर, सॉरी यूजर इनपुट, चैटबॉट के अंदर जो भी यूजर इनपुट आएगा, ओके, देन जो भी यूजर इनपुट आएगा उसका हमें क्या डिफाइन करना है, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ कितना लिखना है, मैक्सिमम लेंथ 100 लिखेंगे, 1000 करना है, 1000 किया, ओके, देन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज नंबर रिटर्न सीक्वेंसेस, क्या है, नंबर रिटर्न सीक्वेंसेस, नंबर रिटर्न सीक्वेंसेस हम देंगे यहाँ पर 1, मतलब 1 क्या है, रिटर्न करेगा नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, ओके, इतना यहाँ पर क्रिएट हुआ हमारा, यहाँ तक क्लियर। क्या किया हमने, फर्स्ट इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एज अ एसटी, देन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन, चैटबॉट वेरिएबल क्रिएट किया है, इसके अंदर पाइपलाइन जो वेरिएबल हमने इंपोर्ट किया है, टेक्स्ट जनरेशन मॉडल यूज किया है डिस्टिल जीपीटी 2, देन इनपुट यूजर इनपुट करेगा, टेक्स्ट इनपुट लिया फ्रॉम यूजर, इफ यूजर इनपुट, अगर यूजर इनपुट क्या है, चैटबॉट के अंदर हमने लिखा है यूजर इनपुट, चैटबॉट पढ़ेगा, मैक्सिमम लेंथ लिया हमने 1000 एंड नंबर ऑफ नंबर रिटर्न सीक्वेंसेस लिया है 1, ओके, इसके बाद क्या करेगा, जो स्ट्रीमलीट है एस टी डॉट राइट, स्ट्रीमलीट क्या करेगा, राइट करेगा, क्या राइट करेगा यहाँ पर, रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स ही करेगा, रिस्पॉन्स ऑफ पर्टिकुलर जनरेट द टेक्स्ट, जनरेट द टेक्स्ट, ओके, यहाँ पर लिखा हमने जनरेट द पर्टिकुलर टेक्स्ट, इतना हमने कोड लिखा। अभी जो हमारा एप्लीकेशन क्रिएट होगा इसका हम क्या करेंगे, नाम भी देंगे, तो नाम हम कैसे देते हैं स्ट्रीमलीट के अंदर, एस टी डॉट टाइटल, राइट, वेट एस टी डॉट टाइटल, टाइटल देंगे हम स्मार्ट जनरेटिव एआई, स्मार्ट जनरेटिव एआई चैटबॉट यूजिंग हगिंग फेस, आप देख सकते हो हगिंग फेस मॉडल, हमने इतना लिखा, कंट्रोल एस करेंगे, अभी यहाँ पर सेव कर लेंगे इसको। अभी हमें रन करने के लिए पता है, वी डोंट वांट पावर शेल, वी वांट कमांड प्रॉम्प्ट, हमें क्या यूज करना है, ऑलवेज कमांड प्रॉम्प्ट सिलेक्ट करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को हमने सिलेक्ट किया। अभी स्ट्रीमलीट एप्लीकेशन रन करने के लिए जो कोड यूज होता है, जो रन यूज होता है, वो क्या करना होता है हमें पता है, फर्स्ट लिखना है पाइथन, बिफोर पाइथन पे हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मर डाउनलोड करना है, पिप इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर, पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर, मीन्स जो भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर लाइब्रेरीज है, पाइपलाइंस है, इसको हमें डाउनलोड करना है यूजिंग द दिस कमांड, पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ पर वेट हो रहा है, वेट करेंगे, अब कोड लिख लो, कोड समझ में आया सबको, ओके, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ऑलरेडी डाउनलोड है यहाँ पर, इसलिए क्या मिल रहा है हमें, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने कोड लिखा है इसको हम रन करेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, ना होने के बाद हम करेंगे, ओके, अभी हमारा जो रन करने का क्यूरी है दैट इज पाइथन स्लैश एन स्ट्रीमलीट रन, रन फाइल नेम इज स्मार्ट जेने डॉट पी वाई, दिस इज अ फाइल नेम, क्या लिखा हमने, पाइथन
/m streamlit run and फाइल नेम। अभी हमें यहाँ पर प्रॉपरली देखना है इस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर हमारा फाइल प्रेजेंट है या नहीं है। इफ सपोज फाइल प्रेजेंट नहीं होगा तो आपको एरर मिलेगा। ओके, सो प्रॉपरली देखना है हमें कहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर रनिंग प्रोसेस चल रहा है हमारा। सी यूआरएल एक मिला है हमें, इसके ऊपर हम फॉलो लिंक करेंगे। यहाँ पर एक लोकल होस्ट के लिए हमारा ओपन हुआ है यूआई। there is some network issues। यस, ओपन हुआ है। थोड़ा लोड लेगा, ये लोड लेगा। समटाइम्स नेटवर्क भी मैटर करता है। प्रॉपरली हमें काम करना है। ओके, यहाँ पर रनिंग हो रहा है। प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हुआ है हमारा। यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज अ यूआई ऑफ स्ट्रीमलीट। नेटवर्क इशू चल रहा है, सो वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम। अभी यूआई के अंदर हमें क्या क्या शो होगा? तो फर्स्ट आएगा टाइटल, दैट इज द स्ट्रीम। 1 मिनट। स्मार्ट जनरेटिव है चैटबॉट। देन यहाँ पर इनपुट सेशन आएगा, आस्क एनीथिंग। अभी यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन पूछा, लेट सपोज व्हाट इज एआई हमने पूछा, तो ये जो मॉडल यूज किया हमने डिस्टिल जीपीटी 2, ये हमें आउटपुट देगा ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हम इसके क्वेश्चन पूछेंगे वो। तो आप यहाँ पर कभी डाउट आता है हमें, तो जो प्रीवियस वीडियो हमने ऑलरेडी शेयर किया है, पाइथन रूट्स फॉर डेटा साइंस एंड एआई के लिए, जो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी हमारा यूट्यूब वीडियो शेयर है, उसके अंदर स्ट्रीमलीट का
ऑल ओवर इंफॉर्मेशन हमने उसके अंदर डिफाइन किया है कि स्ट्रीमलीट काम कैसे करता है, उसके अंदर हम यूआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन से फंक्शंस हमें यूज होंगे और कैसा प्रोसेस को रन करना है, उसके लिए कमांड क्या क्या है, एंड ऑल थिंग्स हमने उसके अंदर कवर किया है। तो आप वहाँ पर जाके आप देख सकते हो।